Hello everyone. Today we are going to discuss power sharing. Power sharing, it means the distribution of power among the government or you can say among the organs of the government. इसका मतलब यहाँ पर ये है when it comes to a legislature, executive and judiciary, these three are considered as an organ of the government. As you know very well, legislature is a law making body. लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इसे एग्जीक्यूट करता है एंड जुडिशरी हमारे लॉज को, हमारे राइट्स को, इनको प्रोटेक्ट करता है. पावर शेयरिंग बेसिकली हमें हेल्प करता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी रहे. पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग लेवल पे भी डिस्टिंग्विश की जा सकती है, जैसे यूनियन, स्टेट एंड लोकल वन. यू नो वेरी वेल देयर इज अ 3-tier सिस्टम in India, that is union, state and local. This is also known as a power sharing method, or you can say power sharing is basically a agreed policy between political parties, or you can say it is a coalition to share responsibility for decision making and for the political action. So all in one we have to know that power sharing, first of all, it means a distribution of power. You can say because the word itself said power share, it means power को share करना यानी power को distribute करना. ये किन किन organs में होता है? That is the legislative, executive and judiciary. और ये political order के यानी you can say कि ये stability provide करता है political system को. इसके साथ साथ में ये union, state और local level पर भी distribute किया जा सकता है. और आप ये कह सकते हैं कि political पार्टीज में ये एक ऐसी पॉलिसी प्ले करता है, और यू कैन से इन पावर शेयरिंग इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल सो दैट अ गवर्नमेंट कैन बी मेड विद अ कोलिशन. कोलिशन मीन्स दैट इज अ व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजॉरिटी इन एनी इलेक्शन. जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, अलग अलग पार्टीज कंबाइन करके जब एक पार्टी बनाती है, दैट मीन्स अ कोलिशन गवर्नमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक अंडर दिस चैप्टर्स. फर्स्ट यू हैव टू नो the terminology, what the terms you need to know. Second, the story of the Belgium and the Sri Lanka and the majoritarianism in Sri Lanka. In this chapter you are going to discuss about the two countries, that is the Belgium and Sri Lanka, accommodation, why power sharing is desirable and forms of power. Now we come to know though that terms you need to know. First one, that is the ethnic. Ethnic means it's a social division based on a shared culture. As you know very well, we live in a social society. That means we are a social animal and we share so many cultures. You know very well, in society there is a number of division and we share number of culture. When we live in a society where culture is shared between people and the communities, that is ethnic. Majoritism, it means the majority community, it will rule over a country by disregarding the wishes and the needs of the majority. यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो कंट्री के ऊपर रूल करती है माइनॉरिटीज़ को इग्नोर करके. कम टू द सिविल वॉर. सिविल वॉर ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो दो ग्रुप्स के बीच में होता है, और आप ये कह सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि वो एक वॉर की तरह रिफ्लेक्ट होता है. उसके अंदर उनके आइडियोलॉजीज रिफ्लेक्ट्स भी होते हैं, उसके अंदर उनका कम्युनिटी रिफ्लेक्ट भी होता है. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिससे वो डील करते हैं. इसी के कारण उसको सिविल वॉर कहा जाता है. प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि प्रूडेंस के ऊपर या एक केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस के ऊपर बेस्ड होता है. ये डिसीजंस जो होते हैं वो बेसिकली डिसीजंस होते हैं प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन पे. आप इसका एक टर्म यूज़ कर सकते हैं कि प्रूडेंशियल्स जो है वो एक कैलकुलेशन है, और आप ये कह सकते हैं इसके अंदर जितने भी डिसीजंस बनाए जाते हैं वो मॉरल कंसिडरेशन के बेसिस पे बनाए जाएंगे. नेक्स्ट, दैट इज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट. बेसिकली द टर्म इटसेल्फ सेज कम्युनिटी. It means a representation of a particular community. It means a elected body by the people to particular language, particular culture and any particular property. वो कहीं पर भी रहें, कैसे भी रहें, अगर कोई भी कम्युनिटी जो है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज या कल्चर को फॉलो करती है और उसी के बेसिस पे अगर गवर्नमेंट बनाती है, दैट मीन्स अ कम्युनिटी गवर्नमेंट. सिविल वॉर. अगेन सिविल वॉर
it's a war between the two communities which is living in the same country, and you can say it can be arose in a different groups, and before we earlier taught that is it can be arose in a different communities also. Checks and balance. Checks and balance, as you know the term, to check and balance between the system. इट इज़ बेसिकली प्रिवेल्ड इन द यूएसए, ये यूएसए में आपको मिलेगा। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, विच ऑर्गन्स, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर आए रखते हैं, और आप ये कह सकते हैं ये तीनों ऑर्गन्स जो है एक दूसरे को चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। और आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे की पावर्स को लिमिट करते हैं। सो इट मीन्स अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। दैट इज द लास्ट टर्म, दैट इज द कोएलिशन गवर्नमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन देयर इज़ नो क्लियर मेजॉरिटी। आप जब भी देखेंगे इलेक्शंस के समय में एक समय आता है जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है। जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो है वो छोटे पार्टीज़ को इन्वॉल्व करके एक मिली जुली सरकार बनाती है। दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी अलग अलग पार्टीज़ को मर्ज करके जब एक पार्टी बनाया जाता है रूल करने के लिए, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो जितनी भी पॉपुलेशन है या जितने भी मेंबर हैं पर्टिकुलर स्टेट में, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ पीपल है, यानी जनता का शासन है। फेडरल गवर्नमेंट, एज आपने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में भी जाना होगा कि इंडिया में देयर इज़ अ फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर दैट इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट। इट मीन्स देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर एंटायर कंपनी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। दैट मीन्स देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द 3 tier, और यू कैन से देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। लेजिस्लेचर, अभी मैंने बताया था कि लॉ मेकिंग बॉडी है, और ये एक ऐसी असेंबली है जिसको पावर होती है कोई भी लॉज को पास करने के लिए, अमेंड करने के लिए, या उसको इम्प्रूव करने के लिए। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है जो सिटीजन्स को अपने पार्टिसिपेशन, एक्वेरेंस उस सिस्टम के अंदर वो एक्वायर करती है। और आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर मिनिमम से लेके मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है पॉपुलेशन का, दैट गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज द स्टोरी ऑफ द बेल्जियम। अब हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ कि बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग मैंडेटरी हो गई। बेल्जियम जो है वो बेसिकली एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। अप्रॉक्सीमेटली जैसे हमारे हरियाणा के अंदर जो पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन जो है आपको बेल्जियम में मिलेगी, जिसके अंदर 59% जो है वो डच लैंग्वेज यूज़ करते थे, 40% जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे, एंड देयर इज़ ओनली अबाउट 1% ऑफ द पीपल who speak German language. So this is the distribution of the Belgium in the Europe. That is the most speaking language is the Dutch, then after the French, and the least is the German. Look at this map. अगर हम इस मैप को देखेंगे, it is distributed according to the language. ब्रुसेल्स जो कि ये है, ये बेल्जियम का कैपिटल माना जाता है। वेल्सन्स जो है वो एक पार्ट है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है। फ्लेमिश जो है ये डच स्पीकिंग है, और ये जो छोटा सा एरिया है दिस वन इज द जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग वहाँ पर ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, हमने देखा है दैट इज़ अ 59% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू अ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। वो कंपैरेटिवली रिच और पावरफुल थी, इसीलिए उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए
और एजुकेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे। कैन यू सी दिस कि देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेनिफिट्स वहाँ पर मिलते थे। इस वजह से, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द benefit to the one particular language, it creates a tension between the Dutch speaking and the French speaking community in the year 1915 and the 1916. Come to the story of the Sri Lanka. Sri Lanka. Why we are discussing the Sri Lanka and the Belgium? इस चैप्टर में यू विल फाइंड आउट कि दो कंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और दोनों ही कंट्रीज़ को अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पर बताया गया है। हमने बेल्जियम की स्टोरी में ये पढ़ा कि बेल्जियम में लैंग्वेज प्रॉब्लम था, यानी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में टेंशन्स थे। अब हम जानेंगे कि श्रीलंका में किस बेसिस पे पावर को शेयर किया गया था। प्लीज़ रिपीट, पावर को शेयर किया गया था। श्रीलंका है, आप जानते हैं कि ये एक आइलैंड नेशन है जो इंडियन कंट्री के कोस्टल एरियाज़ में आपको मिलेगा। जितना भी साउथ इंडिया है उसके अंदर एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, अबाउट कितना 2 करोड़ पॉपुलेशन, जिसके अंदर देयर इज अगेन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंग्वेज। वहाँ पर हमने बात करी थी स्पीकिंग यानी कम्युनिटी की जो लैंग्वेज बोलता है, यानी पर्टिकुलरली दैट इज़ अ फ्रेंच एंड द जर्मन एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर लैंग्वेज की। 74% ऑफ द स्पीकर वर सिन्हला, 18 was the Tamil and the remaining are the Sri Lankan Tamilians. बेसिकली अगर हम बात करें जो तमिल नेटिव्स थे, यानी तमिल नेटिव्स जो थे उनको श्रीलंकन तमिल कहा जाता था, और हमारे इंडिया से जो फोर फादर्स उनके रहे हैं जो एज अ प्लांटेशन वर्कर इंडिया में शिफ्ट हुए थे उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिन्हला पीपल जो थे, यानी जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे, उन्होंने एक रिलीजन को फॉलो किया था, दैट इज़ द बुद्धिस्ट, जिसमें से बहुत सारे तमिल्स और जो मुस्लिम्स, और यू कैन से कि वहाँ पर 2 कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, दैट इज़ अ सिन्हा, इट्स अ लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट अ तमिल, जिसमें भी आपको इंडियन तमिल मिलेंगे एंड तमिल नेटिव्स वर डिफरेंट। तो वहाँ पर जितने भी तमिल्स थे वो हिंदू थे या फिर मुसलमान थे, और केवल एक 7%, देयर इज ओनली अबाउट 7% ऑफ द कम्युनिटी दैट बिलोंग्स टू अ क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। इन्हीं के टेंशन्स की वजह से श्रीलंका जो था एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हुआ इन द ईयर 1948 में। मेजॉरिटिज्म, जैसा कि हमने पहले भी टर्म पढ़ा है, मेजॉरिटिज्म यानी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो कंट्री को रूल करती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लीडर्स थे सिंघला कम्युनिटी में, उन्होंने अपनी डोमिनेंस जो थी वो गवर्नमेंट के प्रति जो है काफ़ी डोमिनेंट हो गए, और आप ये कह सकते हैं कि अपने मेजॉरिटी होने का उन्होंने गवर्नमेंट से काफ़ी फ़ायदा उठाया। इसी के कारण जो था बहुत सारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी उन्होंने मेजॉरिटिज्म की सीरीज़ को अपनाया ताकि सिन्हला सुपरमेसी हो सके। सो यू कैन सी कि यहाँ पर कम्युनिटी दैट इज द सिन्हला कम्युनिटी की सुपरमेसी को डील करने के लिए दे अडॉप्टेड द मेथड ऑफ मेजॉरिटिज्म। ठीक है, 1956 में एक एक्ट पास हुआ और सिन्हला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया गया, और यहाँ पर तमिलियंस को, हिंदू और मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी को इग्नोर किया गया। जो गवर्नमेंट थे उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ को फेवर किया कि सिन्हला एप्लीकेंट्स जो होंगे उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स, और यू कैन से कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जो सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी थी, और इनके बेसिस पे एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया क्योंकि सिन्हला कम्युनिटीज़ को ज़्यादा बेनिफिट्स थे गवर्नमेंट से कंपैरेटिवली टू तमिल्स, हिंदू, मुस्लिम एंड द क्रिश्चियनिटी ऑफ द श्रीलंका। इसके कारण श्रीलंकन तमिलिज्म में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, और इसी का कारण था कि उन्होंने अपनी पार्टीज़ और स्ट्रगल मोमेंट्स, आप ये कह सकते हो कि इतने सारे मोमेंट्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज होने लगे ताकि तमिलियंस को भी वहाँ पर एक
जो प्रायोरिटी मिल सके और आप ये कह सकते हैं कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सके। दिस इज़ द रीज़न कि 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो बने और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिलम यानी एक स्टेट को वहाँ पर डिमांड किया नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। बिकॉज आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो गई that is considered as a civil war. Civil war basically leads to the conflict between the two groups and you can see in the Sri Lanka कि सिन्हा और तमिलन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था और इतनी टेंशन्स क्रिएट हो गई थी कि एक वॉर की तरह रिफ्लेक्ट होने लगा था बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड दैट टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट दैट इज नोन एज अ सिविल वॉर। अब हम बात करेंगे, हमने दो स्टोरीज पढ़ लिया दैट इज़ द बेल्जियम एंड द श्रीलंका। अब हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग किसके बेसिस पे हुआ होगा और श्रीलंका में किसके बेसिस पे हुआ होगा। बेल्जियम में अकोमोडेशन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि बेल्जियम में लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ गया था। देयर वर द 3 लैंग्वेज दैट इज़ द डच, फ्रेंच एंड द जर्मन और उसके बेसिस पे 1970 और 1993 में बेल्जियम लीडर्स जो थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया और इस हिसाब से उन्होंने पावर को शेयर किया ताकि कोई भी कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन ना रहे। उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नंबर ऑफ डच और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वली सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्लूड करेगा। When there is a formation of the central government, they will include the Dutch and the French-speaking minister to run the whole government. उसके बाद में उन्होंने कुछ स्पेशल लॉज बनाए ताकि जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे हर लैंग्वेज ग्रुप को, या आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है डिसीजन नहीं बनाएगी। दैट मीन्स देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द two community, that is the Dutch language and the French language. Last one, that is the state governments are not subordinate to the central government. वहाँ पर एक प्रोविजन बनाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होगा, ऑटोमेटिकली सेंट्रल विल लीड बट स्टेट उसको सबॉर्डिनेट नहीं करेगा। ब्रुसेल्स, एज यू नो, इट्स अ कैपिटल ऑफ व्हाट? बेल्जियम। उसका एक अपना सेपरेट गवर्नमेंट हुआ जिसके अंदर दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, बोथ कम्युनिटीज, दैट मीन्स द डच एंड द फ्रेंच। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, प्लीज रिपीट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एक तीसरे प्रकार की जो है सरकार आई, दैट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने पहले ही पढ़ा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो पर्टिकुलर लैंग्वेज कल्चर के ऊपर बेस्ड होके एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये गवर्नमेंट ने अपने पावर्स को कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से जो है उसको अपनी गवर्नमेंट को रन किया था। और आप ये कह सकते हैं कि बेल्जियम मॉडल जो था वो कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था बट उन्होंने अपनी सिविक स्टायर को 2 कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी देयर इज़ अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द बेल्जियम अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी and you can say according to the language based community, that is the French and the Dutch. As we taught earlier कि power distribution जब हुआ between the Sri Lanka and between the Belgium, there is a question arise कि कौन सी कंट्री ने, श्रीलंका हो चाहे बेल्जियम हो, कौन सी कंट्री ने क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन किया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में मेजॉरिटिज्म को फॉलो किया गया, यानी एक डिस्क्रिमिनेटेड पावर शेयरिंग किया गया, बट बेल्जियम में वही इक्वालिटी को डील करते हुए पावर शेयर किया गया बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़। नाउ कम टू द क्वेश्चन कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल होता है। इसके 2 रीजंस हैं, पहला प्रूडेंशियल रीजंस और सेकेंड वन इज़ द मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीजंस में हम ये समझ सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, यानी जो सोशल ग्रुप्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो भी सोशल ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जो भी सोसाइटी को लीड करने वाली कम्युनिटीज़ जो होती हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए
मेथड अप्लाया जाता है, और आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रीज़न है कि जिसके अंदर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो सकते हैं। इसके बाद में ये ग्रुप्स को प्रिवेंट करता है कि वो अपने राइट्स को एनहांस करें, या आप ये कह सकते हैं कि अपनी पावर्स को अनलिमिटेड तरीके से यूज़ ना करें। कोई भी सिंगल ग्रुप जो है यहाँ पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से यहाँ पर नहीं लिख सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में अपने हिसाब से पावर शेयर नहीं कर सकता है। जब पावर शेयर नहीं की जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है माइनॉरिटी को ऑप्रेस नहीं किया जाएगा, और यू कैन से कि मेजॉरिटी को भी ऑप्रेस नहीं किया जाएगा। इन ऑल प्रूडेंशियल्स रीजन्स में यू विल फाइंड आउट कि कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न कम हो जाते हैं, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती, और आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनलिमिटेड पावर यूज़ नहीं कर सकता, एंड देयर इज़ नो ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी इवन द मेजॉरिटी। मॉरल रीजंस की अगर हम बात करें तो ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, क्योंकि डेमोक्रेसी इटसेल्फ सेज द रूल ऑफ द पीपल। उसके बाद में जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक रूल होता है वो आप ये मानेंगे कि वो इफ़ेक्ट्स और एक्सरसाइज के साथ में जो है आपको लाइव मिलेगा। इट मीन्स जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक रूल होगा, सो देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक इन द गवर्नमेंट, और यू कैन से देयर इज़ अ टोटल और अ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक इन मेकिंग पॉलिसीज़। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है, जहाँ पर सिटीजन जो है पार्टिसिपेशन के थ्रू उसको लेजिटिमेट बनाती है, उसको वैलिडेट करती है कि गवर्नमेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.